Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise 13.1. So our first question is classify the following figures as they are simple curve or simple closed curve or polygon or convex polygon and concave polygon. हमें इन्हें क्लासिफाई करके देना है, अरेंज करके देना है कि ये फिगर इनमें से किस में आता है. सो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट सिंपल कर्व. हमने देखा सिंपल कर्व क्या होता है, which do not cross itself, जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, and that is simple. सो ये फिगर आपकी किसके एग्जांपल है? ऑब्वियसली ये कहीं पे क्रॉस नहीं कर रही है, and this is again a closed figure. सो आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो किसमें आ जाएगा? सिंपल कर्व. सेकंड अगेन आपका कट है लेकिन क्रॉस नहीं है, सो अगेन ये किसका एग्जांपल है? आपका सिंपल कर्व का एग्जांपल. थर्ड तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हैं जो एक दूसरे के अंदर है. जैसे ये वाला जो कर्व है वो दूसरे कर्व के अंदर है, दैट इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व. सो दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ सिंपल कर्व. अगेन ये तो क्रॉस कर रहे हैं, कर्व है बट दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कर्व. अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कर्व व्हिच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ओके, सो फिफ्थ नंबर इज योर सिंपल कर्व. Sixth one is also an example of simple curve because they do not intersect or cross each other. Okay, so sixth is an example of simple curve. Again, seventh one is also an example of simple curve because they are close and do not cut each other, do not cross each other. Okay, so seventh is an example of simple curve. In it, there are two different types of curve. Okay, so this is not simple because they are two different curves. So eighth is not an example of simple curve. Next one is simple closed curve. So simple curve में ही simple closed होगा, जो closed होगा उसे हम देख लेते हैं. That is first one is obviously this is closed. जो simple curve होंगे उसी में से हमें simple closed देखना है. Okay, and next second one is also closed. Then fifth one is also closed. Then sixth one is also closed. Then seventh one is also closed. So all this example of simple closed curve too. The next one is polygon. Polygon we know that is simple closed curve made up of only line segments. So closed होना चाहिए and made up of line segment होना चाहिए. So this one is closed and obviously this one is made up of line segment too. So this is an example of polygon. The next one is also made up of line segments and this is closed, so this is also an example of polygon. Obviously third one is not made up of, this figure is not made up of line segments, so this is not a polygon. Then fourth one again this is made up of line segment and this is closed too, so this is an example of polygon. Okay, ये किससे बनी हुई आपकी? लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. दिस इज क्लोज फिगर, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन. फिफ्थ वन इज क्लोज बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. सिक्स्थ वन इज आल्सो क्लोज्ड बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ बिकॉज दिस एंड दिस आर कर्व्स देयर. सेवेंथ वन इज कर्व प्रेजेंट देयर, सो दिस इज नॉट क्लोज्ड. अगेन दिस इज कर्व, सो पॉलीगॉन्स आर 1, 2 and 4. अब हमें बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन. तो हमें तो वो पॉलीगन ही चाहिए, तो हम 1 to 4 में से ही चेक करेंगे कि वो कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा. तो कॉन्वेक्स के लिए हमने प्रॉपर्टी देखी है कि अगर टू डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं और वो आपको अगर इनर पार्ट में मिलते हैं तो आपका किसका एग्जांपल है? आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल है. सो 1 to 4 में चेक करते हैं हम. सो पहले फर्स्ट में चेक करते हैं, अगर आपने टू डिफरेंट पॉइंट्स लिए तो ये तो आपको क्या मिल रहा है? आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन मिल रहा है, एंड आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन मिल रहा है, देन किसका एग्जांपल हो गया? आपके कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल हो गया, बिकॉज वो आउटसाइड ऑफ द एक्सटीरियर पार्ट में मिल रहा है.
अगेन अगर इसका मैं एग्जांपल ले तो जितने भी आप पॉइंट्स लोगे वो सब क्या मिलेंगे आपको, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन मिलेंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. क्लियर. देन लास्ट वन इज फोर्थ वन. फोर्थ वन में भी आपका क्या आ जाएगा, अगेन दिस इज, अगर आप टू डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं और उनको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पॉलीगॉन के एक्सटीरियर पार्ट में वो लाइन सेगमेंट देखने को मिलेगा. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्केव पॉलीगॉन. Okay. Now our next question is, how many diagonals does each of the following have? हमें कुछ फॉलोइंग फिगर्स गिवन है जिसमें हमें बताना है कि उसमें कितने डायगोनल्स जो हैं वो हैं. और पहली बात डायगोनल्स होते क्या हैं वो देख लेते हैं हम. सो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. सपोज आई एम टेकिंग हियर अ क्वाड्रिलेटरल and I am talking about the line segment which connects its non-adjacent vertices. So इसके adjacent vertices कौन सी होंगी, ये और ये. जो इनको कनेक्ट नहीं करता हो, जो इसकी non-adjacent vertex को कनेक्ट करता हो, that is this one. So ये क्या हो गया आपका एक डायगोनल हो गया. अगेन मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो इसके adjacent vertices कौन सी हो गई, this one and this one. तो जो non-adjacent vertex को ज्वाइन करे that is this one, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं. सो हमें कुछ फॉलोइंग फिगर्स गिवन है, हमें उसमें बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डायगोनल्स आर पॉसिबल इन दिस फिगर. तो इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन्स ऑफ n साइड्स. आपको जितने भी साइड्स दिए हों, जैसे हमें फर्स्ट बात की है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल में आपकी कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. तो हमें n की जगह क्या पुट करना है, 4 साइड्स पुट करना है. सेकंड थिंग हमें दी है अ रेगुलर हेक्सागन. सो हेक्सागन मींस व्हिच हैव अ पॉलीगॉन व्हिच हैव 6 साइड्स. तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी. देन हमें गिवन है अबाउट अ ट्रायंगल. सो ट्रायंगल है 3 साइड्स. तो 3 हमें n की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है. तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे. Okay, so this is our direct formula, that is n into n minus 1 divided by 2 and minus n. So हम फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी आएंगी, क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी आपके पास, 4 आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ जाएंगे आपके. अभी मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल बताया था जिसमें हमने 2 डायगोनल्स ड्रॉ की थी. ओके, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं. जैसे हम हेक्सागन बना के देन हम डायगोनल्स ड्रॉ करें, दैट इज थोड़ा लॉन्ग टाइम लेगा वो. इसलिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज n into n minus 1 divided by 2 minus n. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका क्या होगा, n into n minus 1 divided by 2 and minus n. सो n की जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4, that is 4 minus 1 by 2 minus 4. So 4 into 4 minus 1 is 3 divided by 2 and minus 4. So 4 3s is 12 and 12 divided by 2 minus 4. So 2 6 is 12, that is 2 1s are 2 and 2 6 are 12. That is 6 minus 4. So the number of diagonals in a convex quadrilateral is 2. Similarly हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, B पार्ट के लिए. पहले ये पार्ट आप कॉपी कर लेंगे. देन सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, अ रेगुलर हेक्सागन. अभी हमने डिस्कस किया कि हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं आपकी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी आपकी, 6 होंगी. एंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या करेंगे आप, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज n into n minus 1 divided by 2 minus n. That is 6 into 6 minus 1 divided by 2 minus 6. That is 6 as it is, and 6 minus 1 is 5 divided by 2 and minus 6. 6 5 is 30 divided by 2 and minus 6. So this is 2 1s are 2 and 2 15s are. So 15 minus 6, that is 9.
सो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक फिगर बनाते हैं हेक्सागोन की, देन 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायगोनल नोट करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस। सो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। सो अ रेगुलर हेक्सागोन में आपके कितने डायगोनल्स आ गए? 9। देन आफ्टर हम ट्राइंगल में देखेंगे कि ट्राइंगल में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी ना। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? सी। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल में आपके नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 3। फॉर्मूला आपको सेम रखना है, एन की वैल्यू पर हमें कितनी रखनी है इसमें? दैट इज 3। देन दैट इज 3 minus 1 divided by 2 and minus 3. So this is 3 into 3 minus 1 is 2 and divided by 2 minus 3. So 3 2s is 6 by 2 minus 3. So 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So this is 3 minus 3. So 3 minus 3 is 0, which means triangle does not possess any type of diagonal. ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ही पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल में जितनी भी वर्टेक्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? एडजेसेंट ही होती हैं। तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हमें मिल ही नहीं सकती। सो दैट मींस उसमें डायगोनल्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मींस अ ट्राइंगल हैज 0 डायगोनल। ओके।